नाज़रीन, तीन अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि फ़लस्तीन गाज़ा इसराइल मामला जो है वो तय पा गया है और उस पर दस्तखत हो गए हैं। और फिर वहाँ पर शहबाज शरीफ ने एक छोटी सी स्पीच की, उसमें क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो गुज़श्ता रोज़ TLP के मामलात इस हद तक बढ़ गए कि दोनों जानब से शहादतें हुई हैं, वो मामलात क्यों बढ़े, कसूर किसका था, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा सुहेल अफरीदी का जो मामला है वो वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए हैं मगर हलफ क्यों नहीं ले सके, क्या मामला दरपेश रहा, ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो है वो फ़लस्तीन गाज़ा इसराइल मामला जो है वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ये जो अमन मुआहदा है वो शर्म अल शेख में तय पा चुका है। आपने गुज़श्ता रोज़ स्पीचेस भी देखी होंगी। अमेरिका, मिस्र, कतर, तुर्की और हमारे वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और 20 से ज़ायद ममालिक जो है उन्होंने जो है वो शिरकत की और ये मामला अपने पीस अमन जो है वो मुकम्मल हुआ और दस्तखत हो चुके हैं। और फ़लस्तीन में नाज़रीन खुशियां मनाई जा रही है और हमास ने कैदी जो हैं वो रिहा कर दिए हैं और जनाब अली जो इसराइल है उन्होंने भी कैदी रिहा कर दिए हैं। तो ये मामला जो है वो, और इसकी तफसीलात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये अमन मुआहदा जो है इसके 12 दफ़ा आपको नुकात और अमली जामा जो किस तरह पहनाया जाएगा और किस तरह जो है आइंदा हिकमत अमली होगी वो सब हम आपके ऊपर वाज़ेह कर चुके हैं। तो इस दौरान नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की तो थोड़ा सा मौका शहबाज शरीफ को दिया गया। Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump, my dear brother President Fathi al-Sisi of Egypt, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. Well, I would say today is one of the greatest days in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine
and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. I would like to thank my very dear brother, Sheikh Tamim. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take more of your time. Suffice it to say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि इस अमन पीस को करवाने में जो है उन्होंने उनकी तारीफ की, और उसके बाद नोबेल पीस के लिए शहबाज शरीफ ने उनको नामजद किया और उनको फिर दुआएं भी दी कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। तो ये छोटी सी स्पीच उन्होंने की और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये मनाजर भी लोगों ने देखे। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट थी फ़लस्तीन इसराइल गाज़ा के हवाले से। और नाज़रीन अब हम आ जाते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो TLP है उसके साथ जो यहाँ तक नाज़रीन मामलात पहुँचे कि दोनों तरफ से अमवात हुई हैं, दोनों तरफ से शहादतें हुई हैं, और ये मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे। तो नाज़रीन ये इसकी तफसीलात मैं शार्ट में बयान कर देता हूँ। नाज़रीन ये जो है ये हुकूमत की जो पॉलिसी होती है, हुकूमत का जो तर्ज़ अमल होता है, हुकूमत के पास ही ताकत होती है। तो हुकूमत ने ही कोशिश करनी होती है कि मामलात को जो है यहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए। तो इस सारे प्रोसेस में ये जो एहतजाज हुआ, तो एहतजाज से पहले भी जो है वो उनका जो हेडक्वार्टर है उनके ऊपर हमला किया गया और वहाँ लोग जो है उनकी शहादतें हो गई। तो उसके बाद जो है मामलात जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया। फिर जब उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया तो फिर जो है उनको जगह जगह जो है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ होती रही और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी होते रहे। फिर मामला यहाँ तक बढ़ा कि मुरीद के में उन्होंने पड़ाव डाला और रात वहाँ गुजारी। तो अलग सुबह फजर के टाइम फिर पुलिस ने उन पर भरपूर जो है क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में नाज़रीन ये पता चला है कि पुलिस के जो SHO हैं व दीगर पुलिस की जो है वो भी शहादतें हुई हैं, और जो TLP के लोग हैं उनकी भी शहादतें हुई हैं और उनकी तादाद कन्फर्म नहीं हो रही। और ये नाज़रीन मामला जो है इसका सारा इस मामले को जो बढ़ा है और यहाँ तक मामला पहुँचा है, तो ये इसमें हुकूमत की ही जो है वो गलती तस्लीम की जाएगी, क्योंकि हुकूमत अगर चाहती तो मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ नेगोशिएशन के साथ ये तय पा सकते थे। इस पर हामिद मीर ने बड़ा तफसीली तबसरा करते हुए बताया है कि एक तो ये देखें कि इसराइल
में जो पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हो रही थी वो लाइव दिखाने की हमें इजाज़त थी। तो यहाँ जो पाकिस्तान में मामलात होते हैं वो इजाज़त नहीं होती, जिसकी वजह से मुख्तलफ यूट्यूब चैनल हैं, मुख्तलफ उनकी जो है वो कुछ तो अथेंटिक खबरें भी देते हैं और कुछ जो है उनका तो पता ही नहीं होता कि ये यूट्यूब चैनल कहाँ से बना, कौन है, ये उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो फिर इस तरह की अफवाहें फैलना और यहाँ तक कि साद रिजवी की गोलियां लगने की भी खबरें दे आ जाना और फिर इस तरह मामलात जो है बढ़ सकते हैं और ये गलत फहमियाँ फैल सकती हैं। तो इस पर हामिद मीर ने कहा है कि अगर जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उनको इजाज़त होती तो हम क्वेश्चन करते साद रिजवी से और उनको कन्वेंस करने की कोशिश करते कि इस वक्त जो है ये आपका एहतजाज जो है ये अब जो इस वक्त करना मुनासिब नहीं है और अगर आप चाहते ही हैं ज़रूरी तो चलो आप लाहौर में ही कर लें। तो उन्होंने कहा कि बड़ी हद तक मामला जो है अफ़वाम तवीन से तय पा सकता था। तो ये नाज़रीन हुकूमत ने जो है वो पता नहीं कि ये ठान रखी थी कि हमने जो है वो मामला तय नहीं करने और मामलात को इसी तरीके से हैंडल करना है जिस तरह ये हुआ। तो इस तरह नाज़रीन नुकसान भी हुआ और अब ये पता चल रहा है कि साद रिजवी जो हैं वो जो आईजी हैं उन्होंने बताया है बकौल एक एंकर के वो जो हैं वो पता नहीं किनकी हिरासत में है, अब कौन सी पुलिस की हिरासत में है, किस एरिए की पुलिस के पास है, मगर ये ज़रूर कन्फर्म किया है कि उनको गोली कोई नहीं लगी। और उसके बाद ये भी कन्फर्मेशन आ रही है कि उनके ऊपर मुकदमा कत्ल का दर्ज कर दिया गया है। और नाज़रीन ये मज़ाक़ा खेज़ बात है कि वो बताया जा रहा है कि SHO के कत्ल का मुकदमा अनस रिजवी और साद रिजवी के ऊपर कर दिया गया है और उसमें जो डिटेल और जो कहानी बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि SHO के ऊपर गोलियां साद रिजवी ने और अनस रिजवी ने चलाई हैं। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन सूरत हाल है। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं हम कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनका गुज़श्ता रोज़ सारा प्रोसेस आपने देखा, वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और सारा आपने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में सारा जो प्रोसेस होते हुए आपने देखा। और नाज़रीन अब रह गया हलफ का मामला। तो आपको पता ही है कि फैसल कुंडी जो है उन्होंने क्या जो स्टैंड लिया और क्या रवैया अख्तियार किया कि वो एक तो छुट्टी पर चले गए कि दो तीन दिन मैं छुट्टी पर हूँ और नाज़रीन इतना अहम मामला और उसको छोड़कर वो छुट्टी पर चले गए। फिर उन्होंने एक एतराज़ कौन सा लगाया कि जो अलीमिन गंडापुर हैं उनके 2 इस्तीफे मौसूल हुए, दोनों पर दस्तखत जो है वो मुख्तलफ है। तो नाज़रीन ये आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, तो ये मज़ाक़ा खेज़ बातें हैं। हुकूमत के इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए बंदे जो है ना वो कहते हैं कि उनको ये जो है ना वो चवलियाँ जो है ना वो नहीं मारनी चाहिए। ये चवल मारी उन्होंने कि जनाब दस्तखत एक जैसे नहीं। और जो अलीमिन गंडा पर है उन्होंने पार्लियामेंट में आकर मीडिया पर आके कह दिया भाई ये मेरे ही दस्तखत है। तो इसके बाद कोई बात रह जाती है। उसके बावजूद नाज़रीन वो हलफ बर्दारी ना हुई। फिर जो है जो यानी PTI की तरफ से और उनकी तरफ से ये स्टैंड लिया गया कि उन्होंने ये फैसला किया कि हाई कोर्ट पेशावर में रुजू किया जाए, लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट में रुजू किया। तो उनकी जो है वो इस्तदा जो है मंजूर हुई और आज का जो है डेट है और आज जो है वो उस पर अमल होगा। और क्या फ़ैसला आता है, ज़ाहिर बात है कि उनकी जो दरख्वास्त है, जो इस्तदा है वो ये है कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं कि वो हलफ बर्दारी कराएं। तो ये अख्तियार जस्टिस का मौजूद है। तो ये उनकी इस्तदा है कि किसी को भी मुकर्रर किया जाए। तो ये आज का जिस टाइम आप ये व्लॉग नाज़रीन सुन रहे होंगे उस टाइम तक ये हाई कोर्ट से फैसला आ चुका होगा और उम्मीद है कि वो हलफ बर्दारी भी हो जाएगी। मगर हुकूमत जो है
ان کو بڑی پریشانی ہے، اور نون لیگ کو اور اس کے ساتھ عظمیٰ بخاری کو بڑا مسئلہ ہے، وہ بڑے بڑے سخت بیانات دے رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین مولانا فضل الرحمان بھی نون لیگ کے ساتھ اس معاملے میں ایک پیج پر ہے، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ سارا پروسیس ہی غیر قانونی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ تو ناظرین ان کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری نیوز آپ کو ملتی رہے تو آپ گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔